Okay, so which poem had we done last time? सर ऐसे वाला स्टार्ट होगा. Essay. Okay. ठीक है. तो हम लोगों ने बताया था कि क्या डिफरेंसेस है ना between essay and a short story. Yes, sir. क्या था? कोई बताएगा? Abul? Yes, sir. Your name is not Abul. Let Abul say. है Abul? देखो Abul जो है सो हाँ कोई और? Yes, sir. Tell me. सर ऐसे में कैरेक्टर नहीं होता है, उसमें किसी चीज के बारे में पूरे अच्छे से हम बताया जाता है और स्टोरी में कोई कैरेक्टर होता है जिसके बारे में. गुड गुड, बिल्कुल यही मैं सुनना चाह रहा था. और आप लोगों को समझने के लिए कि ऐसे और इसमें, तो ऐसे में there are no characters. Like we read the story, the postmaster, about Ratan was one character, the postmaster was the other character. So और ऐसे होता है जैसे अब हम लोग देखेंगे कि किसी एक टॉपिक के बारे में. अब यहाँ पे है इंडिया अगेन. Why again? Because the author E.M. Forster, he is visiting India for the second or the third time. Repeated visits उनका हुआ है इंडिया में, और इसलिए वो लिखते हैं इंडिया अगेन, यानी मैं फिर से भारत जा रहा हूँ. और ये और उसमें कोई कैरेक्टर्स नहीं है. ठीक है. He explains कि हर विजिट पे, जो पहले विजिट पे जो उन्होंने देखा था और दूसरे विजिट में जो उन्होंने देखा, तो what was the difference? And did I share my screen with you? No. No, sir. Let me begin. Screen sharing. Now can you see it? Yes, sir. This? Yes, sir. No. दिख you रहा है see? सर. Yes, sir. दिख रहा है. ठीक. अभी समीर आलम ने डिसाइड किया कि let me also join the class. So he's in with us. Now, coming to the essay section, the first story. There are three altogether. So Edward Morgan Forster, he was born in 1879 and he died in 1970. So he was the only remaining child of an architect who died when the child was just 1 year old. यानी जब ये 1 साल के थे तभी इनके पिताजी का डेथ हो गया था. His mother was from middle class family. Morgan, ये थोड़ा सा राइटर के बारे में एक brief introduction mention है. I'll just read it out to you. Good to know knowledge. जानना चाहिए. ठीक है. Yes, sir. So he was educated at English upper middle class. किस क्लास के, किस वर्ग के थे? तो उच्च मध्य वर्गीय फैमिली से थे वो. He was educated at Tonbridge School from 1893 to 1897 and at King's College, Cambridge. Forster wanted to know Indians and to explore the imaginative universe. यानी जो सृष्टि है पूरी तरफ से, उसका मैजिकल यूनिवर्स को वो एक्सप्लोर करना चाहते थे, देखना चाहते थे, क्योंकि वहां इंग्लैंड की जीवन भिन्न थी, इंडिया में जीवन भिन्न थी, अलग था लाइफ. So his first visit to India was mostly for pleasure. घूमने घामने वो आए थे, first visit, and to visit his friend Masood,
whom he had met 1910 at Cambridge. यानी एक इंडियन बंदा जिनका नाम था मसूद, ठीक है ना, वो कैम्ब्रिज में उनके साथ पढ़ता था, उनसे मिलने वो आए इंडिया. He visited India first time in 1912 and to 13, and again in 1921 to 22. और फिर एक बार 1945 में भी वो आए थे. आगे हम लोग देखेंगे. His literary works, उनके जो साहित्य के जो काम हैं या जो रचनाएं हैं, साहित्य की रचनाएं, A Passage to India, very famous book, A Passage to India. Next, the second that he had written, Where Angels Fear to Tread. Tread मतलब वहां पे पांव रखने में भी डरते हैं. Raj है, Raj Verma? Yes, sir. Okay. So Where Angels Fear to Tread. And third, जो उनका बहुत famous रचना था, A Room with a View. A Room with a View, 1908. So these are the three stories that he had written, his literary works. फिर उन्होंने The Celestial Omnibus, a collection of pastoral and fanciful short stories, वो भी लिखा है इन्होंने. And then he penned 6 novels expressing his views on his experiences. उनका जो तजुर्बा जो था उस पे उन्होंने लिखे हैं 6 novels. Now coming to the present lesson जो हमारे syllabus में है, India again. So India again is taken from one of his broadcasts given to BBC on his return from India. यानी इंडिया से जब वो लौटे 1945 में, तो वहां पे उनका इंटरव्यू लिया गया BBC रेडियो पे, which in 1945, which was his last visit, आखिरी विजिट उनका था 1945 में. He had come to attend the PEN conference at Jaipur. PEN का full form है यहाँ पे जो लेखकों का कॉन्फ्रेंस था, वो लेखक जो लिखते हैं. So poetics, sorry, not poetics, but poetists, rather poets, simple, I'm so sorry. It's poets, essayists and novelists. ठीक है, उन लोगों का कॉन्फ्रेंस था, यानी जो कविता लिखते थे, जो एसे लिखते थे और जो नॉवेल्स लिखते थे, उन लोगों का कॉन्फ्रेंस होना था जयपुर में. उसमें वो आए थे, तो वहीं के कॉन्फ्रेंस के बारे में पूरी राय विचार उनसे वहां पे ले रहे थे BBC वाले जर्नलिस्ट. तो वो अपना बताया, उसी पे जो उन्होंने बताया, जो रचनाएं, जो बातचीत की उस BBC के इंटरव्यू में, उस पे ये स्टोरी बेस्ड है. Forster loved India. वो बार-बार इसलिए इंडिया आए because he loved India. He liked the people, he liked the colors, he liked all the atmosphere जो यहाँ पे था. So Forster loved India. He had visited twice before, in 1912 and 1921. वही 2 बार पहले भी आ चुके. At the Pen Club, जो poets, essayists and novelists club, he met Indian intellectuals and was surprised at the interest in politics more than the artistic, social or economic problems. और वहां पे जो सब लोगों से मिले, तो उनको बड़ा ताजुब हुआ कि यहाँ पे यार लोग जो हैं उनको कोई ये नहीं है, दिलचस्पी नहीं है. हम लोग पोएट्स क्लब में आए हैं, यहाँ पे पोएट्स, एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट, लेकिन लोग जो है सब लोग बात कर रहे हैं किस चीज के बारे में, राजनीति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में. नोबडी इज डिस्कसिंग लिटरेचर, साहित्य के बारे में जिसके लिए मेरा, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. तो ये चीज उनको नोटिस किया उन्होंने, और वहां पे एक से एक बुद्धिजीवी वर्ग से वो मिले, इंटेलेक्चुअल, and was surprised at the interest in politics more than the artistic, social or economic problems.
He found them keenly discussing political issues. He found them keenly discussing political issues. यानी जिसको देखो राजनीति के बारे में. अब उस टाइम के ब्रिटिश इंडिया एक ऐसे मोड़ पे भी था when the ब्रिटिशर्स को हम लोग कह रहे थे कि भाई आप खाली कीजिए हमारा देश. उस लेवल पे आ गए थे. प्रोटेस्ट चल रहे थे. कितने लोगों ने अपनी जान दी. तो पॉलिटिक्स तो गर्म मुद्दा था ही उस टाइम, क्योंकि अंग्रेजों को भगाना था. So when he tried to speak on the agenda of the club, no one paid attention. यानी पहले से जो क्या-क्या टॉपिक पे बात करना था, जब वो उस पे बात करने लगे तो कोई ध्यान नहीं दिया उनकी बातों पे. As why? Because politics was the utmost importance at that time. क्योंकि उस जमाने में सब लोगों के दिमाग में पॉलिटिक्स, राजनीति ही चल रहा था. He found them keenly discussing political issues. It was not so earlier. When he tried to speak on the agenda of the club, no one paid attention. And thus politics was the utmost important then. So Forster, E.M. Forster, जो लेखक हैं, उनको Forster noticed that externally, यानी बाहरी रूप से, externally, India was the same. यानी एक ही ऐसा दिखता था वो. He was seen as the same way everywhere outside. यानी बाहरी रूप से इंडिया का रूप एक था. और कब उन्होंने ऑब्जर्व किया, Foster noticed that externally India was the same. Through the dirty windows of the train, he saw the same landscape. यानी जो बाहर का लैंडस्केप उसको कहते हैं, जो बाहर के पेड़, धरती, झरने, पहाड़, इसको लैंडस्केप कहते हैं. तो उनको लगा कि एक ही तरह का है. वो ट्रेन में उन्होंने सफर किया था इंडिया में, तो he found it monotonous, एक ही तरह का, नीरस, मोनोटोनस. लेकिन कहीं कहीं उनको बड़ा दिलचस्पी लगा. एनिग्मेटिक मतलब वो बहुत सा छुपाए हुए कुछ, ये क्या कहना चाह रहा है समझ में नहीं आ रहा है, उसको कहते हैं एनिग्मा. यहाँ पे एनिग्मेटिक बनाया गया. एनिग्मेटिक इज समथिंग व्हिच यू डोंट नो व्हाट इट इज ट्राइंग टू से. वो कहना क्या चाह रहा है. तो कोई चीज आपके लिए हमेशा रहस्य बना रहेगा, उसको एनिग्मा कहते हैं. कि आप उसको समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए. ऐसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है. कौन है रोल नंबर 4? है सर रोल नंबर 4. What's your name? आपने नाम डाला ही नहीं है. Roll number 4. Yes sir. Who are you? Saima. Yes sir. So नाम हटा दिया तुमने. सर नाम तो है ही. ओह सॉरी सर, सॉरी. So monotonous, enigmatic, mysterious यानी रहस्यमय. उनको इंडिया बड़ा रहस्यमय भी लगा. और कहीं कहीं कुछ देख के वो बहुत विचलित हो गए, डिस्टर्ब हो गए. Because when he saw the poverty, जो गरीबी इंडिया में, तो वो बहुत विचलित हुए. So India was to him in all spheres mysterious, enigmatic, monotonous, and of course very sinister and disturbing. Sinister मतलब दम devilish, जो शैतानी टाइप का कुछ इन्होंने यहाँ पे देखा. जो गरीबी या आदमी कैसे आदमी का शोषण करता है. So poverty was seen everywhere. The changelessness was the real India. So the changelessness was the real India. In other words, जो बदलाव हुआ ही नहीं था.
अधिकतर चीजों में। कहीं कहीं बदलाव हुआ तो उसका वो करेंगे वो आगे इसका उसको एक्सप्रेस करेंगे, बट अदरवाइज ही सेज दैट द चेंजलेसनेस वाज द रियल इंडिया। असली इंडिया वो था कि जो बदला ही नहीं था। द सेकंड चेंज व्हिच मेड हिम हैप्पी वाज द लिफ्टिंग ऑफ द पर्दा सिस्टम। पहले विजिट में या बाकी विजिट में आए थे तो वहां पे देखे थे कि जितनी महिलाएं हैं या ऑल ऑफ देम पर्दा सिस्टम के अंदर में रहती थी। लेकिन जब बाद वाले विजिट में आए 45 वाले में, तो उन्होंने नोटिस किया दैट मोर एंड मोर वुमेन वर विदाउट द पर्दा। So this उन्होंने क्या लिया? It was a sign of freedom of women. Earlier, he had noticed that women were hardly ever seen. यानी पब्लिक प्लेस में या रोड पे इस पे कहीं औरतों को देखा नहीं था। वो सब लोग अपने घर में ही रहते थे, पुरुष ही बाहर निकलते थे। तो अर्लियर उन्होंने वो नोटिस किया था। He had noticed that women were hardly ever seen. Even as his second visit, or even in his second visit, he only saw some who were educated, but he was pleasantly him out on the streets openly. So, पहले तो women दिखते, but even in his second visit, he only saw some who were educated, but it was pleasantly surprised to see them that on the streets openly. बाद में जो subsequent visit, तो ये कहानी देखिए, इसका मेन जो उनका रोल है कि पहले विजिट में उन्होंने क्या देखा, दूसरे में क्या देखा, तीसरे में क्या देखा, कितना बदलाव आया था इंडिया में, उसका उल्लेख इन्होंने किया है। So at some conferences, but he was pleasantly surprised to see them out on the streets openly. यानी महिलाओं को out on the streets अपना काम, रोजमर्रा का काम करते हुए देखे। At some conferences, they, यानी the females, the ladies, they outnumbered the men. So according to Forster, and gender justice is ensured. So Forster इस पक्ष में थे कि जब तक gender justice नहीं होगा, इंडियन नेशनहुड और फ्रीडम, आजादी एक बहुत दूर का सपना होगा। पहले आपको अपने मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। पढ़ने का, पढ़ाई का अधिकार, नौकरी का अधिकार, नौकरी करने का, इस सब लोग को होना चाहिए। ये नहीं कि आप घर में बैठो, मैं बाहर जाऊंगा कमाऊंगा, ये गलत कंसेप्ट है। उनको भी आजादी होनी चाहिए कि वो घर में बैठना चाहती हैं और दे वांट टू earn a living. Earlier he had noticed that women were hardly ever seen, but he was pleasantly surprised to see them out on the streets openly. At some conferences they outnumbered the men. Outnumbered मतलब ज्यादा संख्या में थी, पुरुषों से ज्यादा संख्या में। According to Forster, under the ये हम लोग तो कर लिए थे, is a distant dream. The third change was, देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ आगे, कुछ लोग आप लोग गुम हो गए हो कि कहाँ पे हैं, हम लोग इसके नीचे वाली लाइन पे, नेशनहुड के बाद। So and freedom is a distant dream. The third change, तीसरा बदलाव उन्होंने देखा, was that he was in the buffet system. यानी जब वो शुरू में आए थे तो उनको एक दो जगह खाने पे आमंत्रित किया गया और इंडियन स्टाइल में जमीन पे बैठ करके और पत्ता दोना रख करके, और वहां पे उनको बड़ा कष्ट हुआ, बिकॉज जो अंग्रेज लोग होते हैं तो वो अपना शर्ट कोट इस तरह का पहने रहेंगे, शूज पहने रहेंगे, तो पहले तो आपको वहां बैठने खाना तो जूता खोलिए, फिर जो आप जिस लेवल पे नीचे बैठ के खाएंगे तो सब लोग को अपना क्रॉस लेग्ड, यानी अपना पालथी मार के, उसको कहते हैं क्रॉस लेग पोस्चर, कैन ओनली सिट ऑन दैट पोस्चर। तो वो किसी इंग्लिशमैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है उस तरह से करना, तो उनको बहुत कष्ट हुआ था, तकलीफ हुई थी। लेकिन जब उन्होंने बाद के विजिट्स में आए तो उन्होंने क्या देखा कि बुफे सिस्टम, यानी खाना लगा हुआ है, अपना प्लेट लीजिए और खाना निकाल के खाइए जो आपको अच्छा लग रहा है। आज की डेट में भी गांव में भी बहुत सी जगह बुफे सिस्टम ही चालू हो गया। पहले वाला सिस्टम जो था हम लोग का
जो पत्ता लगता था और वो पे क्या आप लोग क्या कहते हैं? ये सर सर गांव में अभी सुनाई भी मत है तो सर। हाँ, गांव में अभी भी है लेकिन कम है कि नहीं है पहले से? पहले तो हर भोजन वैसे ही होता था, जमीन पे ही बैठ करके। और हाँ अब कम है थोड़ा सा, लेकिन जब जो अभी भी हैं कुछ से खिलाते हैं उसमें से। हम्म, ये उस टाइम की बात है, तो दिल्ली उल्ली में ही देखे होंगे, वहां भी ये नया सिस्टम बुफे सिस्टम चालू हो गया था। इसमें दोनों में अपने अपने फायदे हैं। बुफे सिस्टम में है कि भाई आप उतना ही लीजिएगा और वही चीज दीजिएगा जो आप खा सकेंगे। यू विल नॉट वेस्ट योर फूड, राइट? Yes, sir. You will not waste it. Whereas, whereas the other system that you have, ये सर the वहां पे खाना कोई और चलाता है, उसको चलाना कहते हैं। वो फलना चलाओ, ये चलाओ, उनको पता नहीं खाने को सर्व करने को चलाने क्यों बोलते हैं लोग। तो खैर, तो उसमें अब मुझे चाहिए चावल दम थोड़ा सा, मैं कम खाता हूँ भाई, अल्पाहारी हूँ। आई लाइक टू ईट वेरी लिटिल एंड समवन कम्स और वो मेहमान नवाजी देखने, अरे आप हमारे यहाँ मेहमान है, ये लीजिए 5 कलछुल चावल डाल देगा। अब मैं कभी उसको देख रहा हूँ, कभी चावल को देख रहा हूँ कि मैं करूंगा क्या इतने चावल का, ये तो वेस्ट होगा। तो बुफे सिस्टम में ये फायदा है कि वेस्ट बहुत कम होता है। उसमें भी होता है लेकिन आप उतना ही लीजिएगा और वही चीज लीजिएगा जो आपको पसंद है। यहाँ पे तो वो एकदम लाइन से खाना डालते हैं, आपको पसंद हो या ना हो, यू विल गेट दैट फूड एंड इफ यू डोंट लाइक इट यू विल वेस्ट इट, छोड़ दीजिएगा। सो बोथ हैव दिस थिंग। अबुल, अबुल यार इसको बाहर करो तो, आई डोंट वांट हिम इन हिज अटेंडेंस टुडे। ही इज ट्वाइस है। नेटवर्क इशू है सर। हु इज दिस? अब तुम बोल रहे हो उस टाइम नेटवर्क इशू था, अब सही हो गया? बड़ा सेलेक्टिव है ये, क्या कहते हैं, नेटवर्क इशू। जब तुमको फायदा होता है तो उस टाइम चला जाता है, उस टाइम रहता है, मतलब जब मैं ढूंढ रहा हूँ तो उस टाइम चला जाता है। सिड, सिड कहाँ रहते हो तुम? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट सर। तो वहां पे अगर किसी की शादी उदी या ये सब होती है तो विच इज मोर पॉपुलर, जो क्या कहते हैं, बुफे सिस्टम या अपना देसी तरीका जो है पत्तल वाला बना वाला? नहीं सर, जैसे सब हम्म। सर जिसको जैसा होता है उसी तरह करते हैं। तो ज्यादा कौन होता है, वही मेरे क्वेश्चन का ध्यान तुमने नहीं दिया। नहीं, ज्यादा होता है देसी सर, जैसे ज्यादा सर। हम्म। नीतू, तुम कहाँ पे हो अभी? पटना डिस्ट्रिक्ट है सर। अच्छा, नहीं, पटना में मतलब कहीं इंटीरियर में हो, मतलब बाढ़ बख्तियारपुर या कहीं? नो सर, तो पालीगंज। हाँ पालीगंज। तो वहां पे कौन सा, अगर किसी की शादी उदी होती है या कोई घर भोज होता है तो इस तरह का, तो व्हाट इज द सिस्टम दैट इज मोर कॉमन ओवर देयर? जहाँ ज्यादा बूफे होता है। बुफे होता है ना। तो यस हम सर। लोग थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं कल्चरली, जो लोगों को जो अच्छा लगता है, लेकिन वो पता नहीं सहूलियत किसमें है। दोनों में कुछ कुछ नुकसान भी है, सहूलियत भी है। So, so that was about this thing. So he had, अब देखो ये खुद कह रहा है, the third change he saw was the buffet system. In his previous visits, यानी पहले जो विजिट किए थे, he had painful experiences. बड़ा दुखदाई था उनका, when he was invited for dinners. कि वहां पे जूता उधर खोलिए तो हाथ धोइए, और जो कोट और सूट में होता है उसको बैठना बड़ा मुश्किल होता है।
नीचे. But the buffet system was a relief. At the Pen Club, one of the questions hotly discussed, गर्मजोशी से, गर्मा गर्मी से डिस्कस हो रहा था, विवाद हो रहा था कि भाई कौन सा बेहतर है लैंग्वेज, was the use of English in India. Those from the north preferred Hindi और उर्दू, यानी उत्तर भारत से, जहां से हम लोग हैं, बिहार, यूपी, पंजाब, दिल्ली, तो ये लोग सब लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट हिंदी और उर्दू. Whereas from Bengal, people preferred Bengali. बंगाली करना, उन लोग उस भाषा को ज्यादा लोकप्रिय थे. बट राइटर्स फ्रॉम द साउथ, यानी तमिलनाडु, केरला, ऑल दीज प्लेसेस, वहां के जो राइटर्स आए हुए थे, दे फ्रॉम द साउथ प्रेफर्ड इंग्लिश. सो majority of the people Forster met spoke in English. यानी वो दिखा रहे हैं कि इंडिया में लोकप्रियता थी इंग्लिश की, लेकिन एक ये भी था कि सब लोग अपनी अपनी भाषा चाहते थे. नॉर्थ के लोग ये वाला भाषा चाहते थे. तो आप लोग को इसके जो समझने के लिए ये भी समझना पड़ेगा कि इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी कल्चरल कंट्री. शायद ऐसा देश कहीं नहीं है फ्रांस में या जर्मनी में जो बिहार और यूपी के बराबर है. ठीक है, एरिया में पॉपुलेशन तो शायद उससे भी कम होगा. वहां पे ये कंट्रीज में आप जब जाते हो तो मोर और लेस पूरे कंट्री में एक ही भाषा बोली जाती है. तो वहां पे कोई दूसरे भाषा का होने का कोई औचित्य नहीं है. लेकिन इंडिया में अगर डेली 75 भाषाओं में, ये कितने भाषाओं में तो अखबार छपता है, शायद मैं कम ही बोल रहा हूँ, 75. Why? Because people are from all languages. They speak so many languages. The culture is so different. The food habits are different. The clothes that they wear are different. So that is why the language is also different. तो ऐसे में किसी को एक भाषा को किसी पे थोप देना वो अच्छा नहीं माना जाता है. जैसे हम ही लोग हैं यहाँ पे, हिंदी और उर्दू इज अ मदर टंग मेनली, राइट. अब हम पे अगर कोई आके बोले कि नहीं तेलुगु आपको सीखना है और आपको एग्जाम भी तेलुगु में देना है और पढ़ाई भी तेलुगु में कर, तो हम लोग क्या प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, इस बात का विरोध नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे. नहीं, साइमा नहीं करेगी. नहीं साइमा, विल यू लर्न तमिल? साइमा, शी इज नॉट हियर. बाकी लोग सुन पा रहे हैं? यस सर. यस सर. यस सर. तुम प्रोटेस्ट करोगे राज अगर ये दिया जाए तो? अगर तमिल Yes, बोल sir. रहे तो वही बात है. तो हम लोग को भी उन लोग कैसा सोचना चाहिए कि हिंदी जो है मानते हैं राष्ट्र भाषा, लेकिन अगर किसी साउथ के बंदे पे आप कहोगे who has never been educated, उसके स्कूल में भी हिंदी की कभी कोई टीचर नहीं उपलब्ध रहे, कि अब तुम हिंदी में अब तुमको एग्जाम देना है यूपीएससी का या कोई भी, तो वो उसको तकलीफ होगी या नहीं होगी, है ना? तो यही यहाँ पे वो चीज वो कहना चाह रहे हैं that everybody prefer different language but most people, तो इंग्लिश का यहाँ पे हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि साउथ के भी बंदे इंग्लिश बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत बाकी बंदे बोल सकते हैं. हम अपने अपने क्रिकेट टीम का देखिए, आप कहेंगे नहीं जो बातचीत होगी हिंदी में होगी. अश्विन बोल पाएगा, और भी बहुत सारे प्लेयर्स बीच बीच में आए थे. Will they be able to speak in Hindi? They don't. They will not be able to. तो अपने आइडियाज को, अगर आपको टीम को जिताना है तो ऐसी भाषा बोलनी है जो सब लोग समझ सके, टीम की रणनीति या स्ट्रेटेजी जिसको कहते हैं वो हो सके. So for that is the reason why English is supposed to be a link language. Link मतलब वो जोड़ता है सब लोग, अलग अलग आबादी के लोग. So majority of the people Forster spoke in English, but Forster's last visit to India came at a sudden end. He was back in
अचानक उनका लास्ट विजिट खत्म हुआ किसी कारण से, एंड ही वाज बैक इन लंदन इन दिसंबर midnight. To Forster, it was not like the arrival in Delhi. जब दिल्ली में जब वो आए थे तो उनको लोग वेलकम किए, सब कुछ मतलब बहुत जोर शोर से गर्म जोशी से उनका ये हुआ। जब वो वापस अपने घर आए तो he was all alone. उस तरह का वेलकम बहुत अच्छा नहीं था उनको। So it was not like his this thing in Delhi. Hence, the author has attempted to elaborate the Indian life in various true colors. ठीक है, यानी इंडिया की जो जिंदगी है उसको अलग अलग रंग में उन्होंने उसकी विश्लेषण किया है, या अटेम्प्टेड और इलैबोरेट किया, उसको लंबा समरी वाला पॉइंट नहीं, इसको और लंबा करके दिखाया है लोगों को इस कहानी में। So he very much liked India. So describe the idea contained in the essay India Excuse Again. me, sir. Yes. Sir, Forster name? फिर से बोलो। Forster, Forster. हाँ, इसका क्या होगा? अरे बाबा, ये तो वाकई वही होगा कि the whole Ramayana is finished and you're asking who was Sita. नहीं, यस सर। बताओ उसको फॉर्स्टर कौन है? फॉरेस्टर सर राइटर का नाम है सर। समझे? Yes, sir. हम शुरू से ही बोले जब कहानी के दौरान, उस टाइम आपका ध्यान कहीं और था। हमने यहाँ से बोला ये देखो, इंडिया अगेन बाय एडवर्ड मॉर्गन फॉर्स्टर, यानी E.M. फॉर्स्टर। ये लेखक हैं, उनकी जीवनी हम लोगों ने डिस्कस की कि कौन से स्कूल में गए, उनकी कौन सी रचनाएं थी। फॉर्स्टर उनका लास्ट नेम है, ठीक है, लास्ट नेम या टाइटल जिसको हम लोग कहते हैं। सर जब सेकंड चेंजेस में जब इंडिया वो फर्स्ट आए थे एडवर्ड फोर्ड, तो वो पर्दा सिस्टम में क्या हुआ सर? वो सर उन्होंने पहले विजिट पे ज्यादा औरतों को देखा कि जो पर्दा सिस्टम की हुई थी, पूरा ढकी हुई थी अपना चेहरा। फिर उसके बाद वाले विजिट पे उन्होंने देखा कि बहुत से लोग नहीं की हुई थी, ढकी हुई थी। तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि ये सही तरीका है, आप अपने फीमेल को फ्रीडम, यानी एक ये दीजिएगा काम करने का, उनको अपने सभी अवसर में फ्रीडम देना। क्योंकि अगर कोई आदमी अपना, अगर कोई लेडी अपनी चेहरा पूरा छुपाई हुई है पर्दे सिस्टम से, तो वो सही माने में स्वतंत्र नहीं है, शी इज नॉट फ्री, ऐसा उनका मानना था। तो हर विजिट में, पहले विजिट में ज्यादा लोगों को देखा था उन्होंने पर्दा सिस्टम में, तो बाकी विजिट्स में उनको धीरे धीरे कम लोग दिखे, यानी ये चीज खत्म हो रहा था। ज्यादा से ज्यादा लोग बिना पर्दा के आ रहे थे और उनको लगा कि ये बेनिफिशियल है इंडिया के लिए, जेंडर फ्रीडम के लिए, पुरुष और महिला को बराबर स्वतंत्रता। ठीक है? यस। So ये एक चेंज उन्होंने देखा। Now describe the idea contained in the essay India Again. So describe the idea. In his 3 visits, he has mentioned the changes that India has undergone. So he has mentioned those changes with respect to social customs. Parda system एक social custom, and even about this, that is also a social custom कि ज्यादा से ज्यादा औरतें बाहर निकल करके अपने रोजमर्रा के काम में स्ट्रीट्स पे निकली हुई थी। तो वो भी चेंज देखें, पहले विजिट पे कोई दिखता ही नहीं था, सब जेंट्स ही दिखते थे, आदमी ही दिखते थे। He is talking about that also. And then he is talking about the language जो appreciate होता था। ये सब के बारे में उन्होंने मेंशन किया। ठीक है? So that is of the first question. What changes did he discover? तो ये सारे changes, यही बात है कि आपको ध्यान से पढ़ना होगा।
पर्दा सिस्टम में उन्होंने देखा, फिर और में भी और चीजों में भी देखा कि बदलाव आया है पहले से. So those are the changes that he discussed with in his lesson. पर्दा सिस्टम से लेकर के और बुफे सिस्टम जो पहले प्रचलित नहीं था, it was not very common. He was invited for dinner and he had a very painful time. बड़ा दुखदाई टाइम उनके लिए बीता, वो नीचे बैठ के खाना. लेकिन अब जो बाद के विजिट्स में देखा तो ये चेंजेस उन्होंने नोटिस किए. इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कंप्लीट. मैंने सारे को एक्सप्लेन किया है अभी. So what did the author, sorry, why did the author visit India again and again? 3 बार वो क्यों आए? भाई 3 बार उनका आने का एक ही मकसद था, because he loved India. He loved the vibrancy of the people. He loved the true colors of India. ये सब उनको बहुत पसंद था. That is why he came on 3 occasions to India. Now summarize the essay, India again. मतलब ये पूरे कहानी को आपको संक्षिप्त में लिखना है, summarize करके. Any doubts about any question? मैंने क्वेश्चन भी इसमें 4 ही थे तो वो हमने करा दिया. अबुल, नेटवर्क इश्यू? No, sir. Okay. Any doubts about this lesson? कोई कहीं पे डाउट? So I think time is almost up, and we will continue with the next one next time on being a bore. यानी जो व्यक्ति बोर करता है दूसरों को, वो है on being a bore. This is written by Robert Wilson Lind. ठीक है, तो ये कहानी हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे. Thank you everybody. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.